صحیح بخاری کتاب نماز کا بیان باب ہر مقام اور ہر ملک میں مسلمان جہاں بھی رہے نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرے۔ حدیث نمبر 401 ترجمہ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے منصور کے واسطے سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ ابراہیم نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ نماز میں زیادتی ہوئی یا کمی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا آپ نے اتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں پھیرائے اور قبلہ کی طرف منہ کر لی اور سہو کے 2 سجدے کیے اور سلام پھیرا۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہوتا تو میں تمہیں پہلے ہی ضرور کہہ دیتا، لیکن میں تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلایا کرو، اور اگر کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو اس وقت ٹھیک بات سوچ لے اور اسی کے مطابق نماز پوری کرے، پھر سلام پھیر کر 2 سجدے سہو کے کر لے۔ صحیح بخاری کتاب نماز کا بیان باب قبلہ سے متعلق مزید احادیث، اور جس نے یہ کہا کہ اگر کوئی بھول سے قبلہ کے علاوہ کسی دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے تو اس پر نماز کا لوٹانا واجب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 402 ترجمہ ہم سے عمرو بن عون نے بیان کیا، کہا ہم سے حشیم نے حمید کے واسطہ سے، انہوں نے انس بن مالک کے واسطہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ میری 3 باتوں میں جو میرے منہ سے نکلا میرے رب نے ویسا ہی حکم فرمایا۔ میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا سکتے تو اچھا ہوتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ دوسری آیت پردہ کے بارے میں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، کاش آپ اپنی عورتوں کو پردہ کا حکم دیتے، کیونکہ ان سے اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ بات کرتے ہیں۔ اس پر پردہ کی آیت نازل ہوئی، اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوییں جوش و خروش میں آپ کی خدمت میں اتفاق کر کے کچھ مطالبات لے کر حاضر ہوئیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک تمہیں طلاق دلا دیں اور تمہارے بدلے تم سے بہتر مسلمہ بیویاں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کریں، تو یہ آیت نازل ہوئی، اسی ربا ان تلقکنان یبدلا آزواجہ خیرہ منکن۔ اور سعید ابن ابی مریم نے کہا کہ مجھے یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، کہا کہ ہم سے حمید نے بیان کیا، کہا میں نے انس سے یہ حدیث سنی۔ صحیح بخاری کتاب نماز کا بیان باب قبلہ سے متعلق مزید احادیث، اور جس نے یہ کہا کہ اگر کوئی بھول سے قبلہ کے علاوہ کسی دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے تو اس پر نماز کا لوٹانا واجب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 403 ترجمہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے عبداللہ بن دینار کے واسطہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے، آپ نے فرمایا کہ لوگ قباء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک آنے والا آیا، اس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کل وحی نازل ہوئی ہے اور انہیں کعبہ کی طرف نماز میں منہ کرنے کا حکم ہو گیا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے بھی کعبہ کی جانب منہ کر لیا، جبکہ اس وقت وہ شام کی جانب منہ کیے ہوئے تھے، اس لیے وہ سب کعبہ کی جانب گھوم گئے۔ صحیح بخاری کتاب نماز کا بیان باب قبلہ سے متعلق مزید احادیث، اور جس نے یہ کہا کہ اگر کوئی بھول سے قبلہ کے علاوہ کسی دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے تو اس پر نماز کا لوٹانا واجب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 404 ترجمہ ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا کہ کہا ہم سے یحییٰ بن سعید بن قطان نے شعبہ کے واسطے سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے عبداللہ سے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے سے ظہر کی نماز 1 مرتبہ 5 رکعت پڑھی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ پھر آپ نے اپنے پاؤں موڑ لیے اور سہو کے 2 سجدے کیے۔ صحیح بخاری کتاب نماز کا بیان باب مسجد میں تھوک لگا ہو تو ہاتھ سے اس کا خرچ ڈالنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 405 ترجمہ ہم سے قتیبہ نے بیان کیا کہ کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے حمید کے واسطہ سے، انہوں نے انس بن مالک سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف دیوار پر بلغم دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، اور یہ ناگواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر دکھائی دینے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور خود اپنے ہاتھ سے اسے خرچ ڈالا اور فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، یا یوں فرمایا کہ اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے کوئی شخص نماز میں اپنے قبلہ کی طرف نہ تھوکے، البتہ بائیں طرف یا اپنے قدموں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔
फिर आपने अपनी चादर का किनारा लिया, इस पर थोका, फिर इसको अलट पलट किया और फरमाया, या इस तरह कर ली करो। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब मस्जिद में थूक लगा हो तो हाथ से उसका खर्च डालना ज़रूरी है। हदीस नंबर 406। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इमाम मालिक ने नाफा के वासिता से रिवायत किया, कहा इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्र के वासिता से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़बला की दीवार पर थूक देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खर्च डाला, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से खिताब किया और फरमाया कि जब कोई शख्स नमाज में हो तो अपने मुंह के सामने ना थूके, क्योंकि नमाज में मुंह के सामने अल्लाह अज़्ज़वजल होता है। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब मस्जिद में थूक लगा हो तो हाथ से उसका खर्च डालना ज़रूरी है। हदीस नंबर 407। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने हश्शाम बिन रू के वासिता से, इन्होंने अपने वालिद से, इन्होंने आयशा उम्मुल मोमिनीन से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला की दीवार पर रंट या थूक या बलगम देखा तो उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खर्च डाला। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब मस्जिद में रंट को कंकरी से खर्च डालना। हदीस नंबर 408। तर्जुमा। हमसे सईद बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमें इब्न शहाब ने हमीद बिन अबदाल रहमन के वासिता से बयान किया कि अबू हरीरा और अबू सईद खदरी ने इन्हें खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की दीवार पर बलगम देखा, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कंकरी ली और उसे साफ कर दी। फिर फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स थूके तो उसे अपने मुंह के सामने या दाएं तरफ नहीं थूकना चाहिए, अलबत्ता बाएं तरफ या अपने पाँव के नीचे थूक ले। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब मस्जिद में रंट को कंकरी से खर्च डालना। हदीस नंबर 409। तर्जुमा। हमसे सईद बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमें इब्न शहाब ने हमीद बिन अबदाल रहमन के वासिता से बयान किया कि अबू हरीरा और अबू सईद खदरी ने इन्हें खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की दीवार पर बलगम देखा, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कंकरी ली और उसे साफ कर दी। फिर फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स थूके तो उसे अपने मुंह के सामने या दाएं तरफ नहीं थूकना चाहिए, अलबत्ता बाएं तरफ या अपने पाँव के नीचे थूक ले। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब इस बारे में कि नमाज में अपने दाएं तरफ ना थूकना चाहिए। हदीस नंबर 410। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, इन्होंने अकील बिन खालिद के वास्ते से, इन्होंने इब्न शहाब से, इन्होंने हमीद बिन अबदाल रहमन से कि अबू हरीरा और अबू सईद खदरी ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कंकरी से उसे खर्च डाला और फरमाया अगर तुम में से किसी को थूकना हो तो उसे अपने चेहरे के सामने या अपने दाएं तरफ ना थोका करो, अलबत्ता अपने बाएं तरफ या अपने बाएं कदम के नीचे थूक सकते हो। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब इस बारे में कि नमाज में अपने दाएं तरफ ना थूकना चाहिए। हदीस नंबर 411। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, इन्होंने अकील बिन खालिद के वास्ते से, इन्होंने इब्न शहाब से, इन्होंने हमीद बिन अबदाल रहमन से कि अबू हरीरा और अबू सईद खदरी ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कंकरी से उसे खर्च डाला और फरमाया अगर तुम में से किसी को थूकना हो तो उसे अपने चेहरे के सामने या अपने दाएं तरफ ना थोका करो, अलबत्ता अपने बाएं तरफ या अपने बाएं कदम के नीचे थूक सकते हो। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब इस बारे में कि नमाज में अपने दाएं तरफ ना थूकना चाहिए। हदीस नंबर 412। तर्जुमा। हमसे हिफ्स बिन उम्र ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझे क़तादा ने खबर दी, इन्होंने कहा मैंने अनस बिन मालिक से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने सामने या अपनी दाएं तरफ ना थोका करो, अलबत्ता बाएं तरफ या बाएं कदम के नीचे थूक सकते हो। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब बाएं तरफ या बाएं पाँव के नीचे थूकने के बयान में। हदीस नंबर 413। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे क़तादा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन जब नमाज में होता है तो वो अपने रब से सरगोशी करता है, इसलिए वो अपने सामने या दाएं तरफ ना थूके, हम बाएं तरफ या पाँव के नीचे थूक ले। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब बाएं तरफ या बाएं पाँव के नीचे थूकने के बयान में। हदीस नंबर 414। तर्जुमा।
हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने, कहा हमसे इमाम ज़हरी ने हमीद बिन अबदाल रहमन से, इन्होंने अबू सईद खदरी से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के क़िबला की दीवार पर बलगम देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कंकरी से खर्च डाला। फिर फरमाया कि कोई शख्स सामने या दाएं तरफ ना थूके, अलबत्ता बाएं तरफ या बाएं पाँव के नीचे थूक लेना चाहिए। दूसरी रिवायत में ज़हरी से यूं है कि इन्होंने हमीद बिन अबदाल रहमन से अबू सईद खदरी के वासिता से उसी तरह ये हदीस सुनी। सही बुखारी, किताब नमाज का बयान, बाब मस्जिद में थूकने का कफ़ारा। हदीस नंबर 415। तर्जुमा, हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने, कहा हमसे क़तादा ने, कहा कि मैंने अनस बिन मालिक से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद में थूकना गुनाह है और इसका कफ़ारा उसे ज़मीन में छुपा देना है। सही बुखारी, किताब नमाज का बयान, बाब मस्जिद में बलगम को मिट्टी के अंदर छुपा देना ज़रूरी है। हदीस नंबर 416। तर्जुमा, हमसे इसहाक़ बिन नसर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमें अब्दुर्रज़ाक़ ने मुअम्मर बिन राशिद से, इन्होंने हमाम बिन मनबा से, इन्होंने अबू हरीरा से सुना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा हो तो सामने ना थूके, क्योंकि वो जब तक अपनी नमाज की जगह में होता है तो अल्लाह ताला से सरगोशी करता रहता है, और दाएं तरफ भी ना थूके क्योंकि इस तरफ फरिश्ता होता है, हम बाएं तरफ या कदम के नीचे थूक ले और उसे मिट्टी में छुपा दे। सही बुखारी, किताब नमाज का बयान, बाब जब थूक का गलबा हो तो नमाजी अपने कपड़े के किनारे में थूक ले। हदीस नंबर 417। तर्जुमा, हमसे मालिक बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़हीर बिन मुआवी ने, कहा हमसे हमीद ने अनस बिन मालिक से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला की तरफ दीवार पर बलगम देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसे खर्च डाला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाखुशी को महसूस किया गया, या रावी ने इस तरह बयान किया कि इसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद नागवारी को महसूस किया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा होता है तो वो अपने रब से सरगोशी करता है, या ये कि उसका रब इसके और क़िबला के दरमियान होता है, इसलिए क़िबला की तरफ ना थूका करो, अलबत्ता बाएं तरफ या कदम के नीचे थूक लिया करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर का एक किनारा लिया, इसमें थूका और चादर की एक तह को दूसरी तह पर फैर ली और फरमाया, या इस तरह कर ली करे। सही बुखारी, किताब नमाज का बयान, बाब इमाम लोगों को ये नसीहत करे कि नमाज पूरी तरह पढ़ने और क़िबला का बयान। हदीस नंबर 418। तर्जुमा, हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने अबुल ज़नाद से ख़बर दी, इन्होंने अरज से, इन्होंने अबू हरीरा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम्हारा ये ख्याल है कि मेरा मुँह नमाज में क़िबला की तरफ है? अल्लाह की कसम मुझसे ना तुम्हारा खुशू छपता है ना रुकू, मैं अपनी पीठ के पीछे से तुमको देखता रहता हूँ। सही बुखारी, किताब नमाज का बयान, बाब इमाम लोगों को ये नसीहत करे कि नमाज पूरी तरह पढ़ने और क़िबला का बयान। हदीस नंबर 419। तर्जुमा, हमसे यही बिन सालेह ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे फली बिन सुलेमान ने हलाल बिन अली से, इन्होंने अनस बिन मालिक से, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक मरतबा नमाज पढ़ाई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े, फिर नमाज के बाब में और रुकू के बाब में फरमाया, मैं तुम्हें पीछे से भी उसी तरह देखता रहता हूँ जैसे अब सामने से देख रहा हूँ। सही बुखारी, किताब नमाज का बयान, बाब इस बारे में कि क्या यूँ कहा जा सकता है कि ये मस्जिद फलां ख़ानदान वालों की है। हदीस नंबर 420। तर्जुमा, हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, इन्होंने नाफा के वासिता से बयान किया, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन घोड़ों की जंही जिहाद के लिए तैयार किया गया था मकाम हफिया से दौड़ कराई, इस दौड़ की हद सनिया अलविदा थी और जो घोड़े अभी तैयार नहीं हुए थे उनकी दौड़ सनिया अलविदा से मस्जिद बनी ज़रीफ़ तक कराई। अब्दुल्लाह बिन उमर ने भी इस घोड़ दौड़ में शिरकत की थी। सही बुखारी, किताब नमाज का बयान, बाब मस्जिद में माल तकसीम करना और मस्जिद में खजूर का खुश लटकाना। हदीस नंबर 421। तर्जुमा, मस्जिद में माल तकसीम करना और मस्जिद में खजूर का खुश लटकाना। इमाम बुखारी कहते हैं कि कनु के मानी अरबी ज़बान में अज़क़ खुश खजूर के हैं। दो के लिए कनवान आता है और जुमा के लिए भी यही लफ्ज़ आता है जैसे सनु और सनुन। इब्राहिम बिन तहमान ने कहा, अब्दुल-अज़ीज़ बिन सहीब से, इन्होंने अनस से रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहरैन से रकम आई।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे मस्जिद में डाल दो, और ये रकम इस तमाम रकम से ज़्यादा थी जो अब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ चुकी थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ़ लाए और उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं फरमाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पूरी कर चुके तो आकर माल रकम के पास बैठ गए और उसे तकसीम करना शुरू फरमा दिया। उस वक्त जिसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते उसे अता फरमा देते। इतने में अब्बास हाजिर हुए और बोले कि या रसूल अल्लाह, मुझे भी अता कीजिए, क्योंकि मैंने ग़ज़वा बदर में अपना भी फ़िद्या दिया था और अक़ील का भी, इसलिए मैं ज़ेर बार हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ले लीजिए। इन्होंने अपने कपड़े में रुपया भर लिया और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वज़न की ज़ियादती की वजह से वो ना उठा सके और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, किसी को फरमाइए कि वो उठाने में मेरी मदद करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि फिर आप ही उठवा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर भी इनकार किया। तब अब्बास ने इसमें से थोड़ा सा गिरा दिया और बाकी को उठाने की कोशिश की, लेकिन अब भी ना उठा सके। फिर फरमाया कि या रसूल अल्लाह, किसी को मेरी मदद करने का हुक्म दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार फरमाया तो इन्होंने कहा कि फिर आप ही उठवा दीजिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी इनकार किया। तब इन्होंने इसमें से थोड़ा सा रुपया गिरा दिया और इसे उठाकर अपने कंधे पर रख लिया और चलने लगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी इस हरस पर इतना तअज्जुब हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तक उनकी तरफ देखते रहे जब तक वो हमारी नज़रों से गायब नहीं हो गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ से इस वक्त तक ना उठे जब तक कि एक चुनी भी बाकी रही। सही बुखारी किताब नमाज का बयान। बाब जिसे मस्जिद में खाने के लिए कहा जाए और वो उसे कबूल कर ले। हदीस नंबर 422। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे मालिक ने इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह से, इन्होंने अनस से सुना, वो कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और भी कई लोग थे। मैं खड़ा हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि क्या तुझको अबू तुल्हा ने भेजा है? मैंने कहा जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा खाने के लिए बुलाया है? मैंने अर्ज़ की कि जी हाँ। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीब मौजूद लोगों से फरमाया कि चलो। सब हज़रात चलने लगे और मैं इनके आगे आगे चल रहा था। सही बुखारी किताब नमाज का बयान। बाब मस्जिद में फ़ैसले करना और मर्दों और औरतों, खावनद बीवी के दरमियान लान कराना जायज़ है। हदीस नंबर 423। तर्जुमा। हमसे यही बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक़ ने, कहा हमको इब्न जरेज ने, कहा हमें इब्न शहाब ने सहल बिन साद सादी से कि एक शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, उस शख्स के बारे में फरमाइए जो अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को बदअफ़ली करते हुए देखता है, किया उसे मार डाले। आखिर इस मर्द ने अपनी बीवी के साथ मस्जिद में ऐलान किया और उस वक्त में मौजूद था। सही बुखारी किताब नमाज का बयान। बाब इस बारे में कि जब कोई किसी के घर में दाखिल हो तो किया जिस जगह वो चाहे वह नमाज पढ़ ले, या जहाँ उसे नमाज पढ़ने के लिए कहा जाए वह पढ़े और फालतू सवाल वाऊ जवाब ना करे। हदीस नंबर 424। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कानबी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्राहीम बिन साद ने इब्न शहाब के वासिता से बयान किया, इन्होंने महमूद बिन रबी से, इन्होंने अतबान बिन मालिक से, जो नाबीना थे, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम अपने घर में कहाँ पसंद करते हो कि तुम्हारे लिए नमाज पढ़ूं? अतबान ने बयान किया कि मैंने एक जगह की तरफ इशारा किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ़ बांधी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नमाज नफल पढ़ाई। सही बुखारी किताब नमाज का बयान। बाब इस बयान में कि वक़्त ज़रूरत घरों में जाए नमाज मुकर्रर कर लेना जायज़ है। हदीस नंबर 425। तर्जुमा। हमसे सईद बिन अफ़ीर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे अक़ील ने इब्न शहाब के वासिता से बयान किया कि मुझे महमूद बिन रबी अंसारी ने कि अतबान बिन मालिक अंसारी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और ग़ज़वा बदर के हाजिर होने वालों में से थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी बीनाई में कुछ फ़र्क आ गया है और मैं अपनी कौम के लोगों को नमाज पढ़ाया करता हूँ, लेकिन जब बरसात का मौसम आता है तो मेरे और मेरी कौम के दरमियान जो वादी है वो भर जाती है और बहने लग जाती है और मैं इन्हें नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद तक नहीं जा सकता। या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाएं और किसी जगह नमाज पढ़ दी ताकि मैं उसे नमाज पढ़ने की जगह बना लूँ।
रावी ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अतबान से फरमाया, अनशा अल्लाह ताला में तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा करूँगा। अतबान ने कहा कि दूसरे दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ जब दिन चढ़ा तो दोनों तशरीफ़ ले आए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर आने की इजाज़त चाही। मैंने इजाज़त दे दी। जब आप घर में तशरीफ़ लाए तो बैठे भी नहीं और पूछा कि तुम अपने घर के किस हिस्सा में मुझसे नमाज पढ़ने की ख्वाहिश रखते हो। अतबान ने कहा कि मैंने घर में एक कोने की तरफ इशारा किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह खड़े हुए और तकबीर कही। हम भी आपके पीछे खड़े हो गए और सफ़ बांधी। पस आपने 2 रकत नफल नमाज पढ़ाई, फिर सलाम फेरा। अतबान ने कहा कि हमने आपको थोड़ी देर के लिए रोका और आपकी खिदमत में हलीम पेश किया जो आप ही के लिए तैयार किया गया था। अतबान ने कहा कि मोहल्ला वालों का एक मजमा घर में लग गया और मजमा में से एक शख्स बोला कि मालिक बिन दख्शन, या ये कहा इब्न दख्शन दिखाई नहीं देता। इस पर किसी दूसरे ने कह दिया कि वो तो मुनाफिक है जिसे अल्लाह और रसूल से कोई मोहब्बत नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, ऐसा मत कहो, क्या तुम देखते नहीं कि उसने ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहा है और इससे मकसूद खालिस अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करना है। तब मुनाफ़क़त का इल्ज़ाम लगाने वाला बोला कि अल्लाह और इसके रसूल को ज़्यादा इल्म है, हम तो बज़ाहिर इसकी तवज्जुहात और दोस्ती मुनाफ़िकों ही के साथ देखते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहने वाले पर अगर इसका मकसद खालिस अल्लाह की रज़ा हासिल करना हो दोज़ख की आग हराम कर दी है। इब्न शहाब ने कहा कि फिर मैंने महमूद से सुनकर हसीम बिन मोहम्मद अंसारी से जो बनु सालम के शरीफ लोगों में से हैं इस हदीस के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने उसकी तस्दीक़ की और कहा कि महमूद सच्चा है। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब मस्जिद में दाखिल होने और दूसरे कामों में भी दाएं तरफ से अबतदा करने के बयान में। हदीस नंबर 426। तर्जुमा हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमको शोबा ने खबर दी अशद बिन सलीम के वासिता से, इन्होंने मुसर्रुफ से, इन्होंने आयशा से। आप फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम कामों में जहाँ तक मुमकिन होता दाएं तरफ से शुरू करने को पसंद फरमाते थे। तहारत के वक्त भी, कनघा करने और जूता पहनने में भी। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब किया दूर जाहलियत के मशरिकों की कब्रों को खोद डालना और उनकी जगह मस्जिद बनाना दुरुस्त है। हदीस नंबर 427। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद क़ितान ने हश्शाम बिन रू के वासिता से बयान किया, कहा कि मुझे मेरे बाप ने आयशा से ये खबर पहुंचाई कि हबीबा और सलमा दोनों ने एक कलीसा का जिक्र किया जिसे इन्होंने हबशा में देखा तो इसमें मूर्ति तस्वीरें थीं। इन्होंने इसका तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनका यह कायदा था कि अगर उनमें कोई नेकूकार नेक शख्स मर जाता तो वो लोग इसकी कब्र पर मस्जिद बनाते और उसमें यही मूर्ति तस्वीरें बना देते। पस ये लोग अल्लाह की दरगाह में क़यामत के दिन तमाम मखलूक में बुरे होंगे। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब किया दूर जाहलियत के मशरिकों की कब्रों को खोद डालना और उनकी जगह मस्जिद बनाना दुरुस्त है। हदीस नंबर 428। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, इन्होंने अबुलतिया के वासिता से बयान किया, इन्होंने अनस बिन मालिक से, इन्होंने कहा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो यहाँ के बुलंद हिस्सा में बनी इमरू बिन औफ के यहाँ आप उतरे और यहीं 24 रातें क़याम फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नजार को बल्ला भेजा तो वो लोग तलवारें लटकाए हुए आए। अनस ने कहा, गोया मेरी नज़रों के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर तशरीफ़ फरमा हैं, जबकि अबू बकर सिद्दीक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठे हुए हैं और बनु निजार के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ हैं। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबवायु के घर के सामने उतरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पसंद करते थे कि जहाँ भी नमाज का वक्त आ जाए फ़ौरन नमाज अदा कर लीं। आप बकरियों के बाड़ों में भी नमाज पढ़ लेते थे। फिर आपने यह मस्जिद बनाने के लिए हुक्म फरमाया। चुनाचा बनो निजार के लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बलवा कर फरमाया कि ऐ बनो निजार, तुम अपने इस बाग की कीमत मुझसे ले लो। इन्होंने जवाब दिया, नहीं या रसूल अल्लाह, उसकी कीमत हम सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं। अनस ने बयान किया कि मैं जैसा कि तुम्हें बता रहा था यहाँ मुशरिकीन की कब्रें थीं। इस बाग में एक वीरान जगह थी और कुछ खजूर के दरख्त भी थे। पस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन की कब्रों को अखड़ू दिया, वीराना को साफ और बराबर कराया और दरख्तों को कटवा कर उनकी लकड़ियों को मस्जिद के क़िबला की जानिब बिछा दिया और पत्थरों के ज़रिया इन्हें मजबूत बना दी।
सहाबा पत्थर उठाते हुए रजज़ पढ़ते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ थे और ये कह रहे थे कि अल्लाह, आखिरत के फ़ायदा के अलावा और कोई फ़ायदा नहीं, पस अंसार वाओ मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फरमाना। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब बकरियों के बारों में नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 429। तर्जुमा हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने अबुल्तिया के वास्ते से, इन्होंने अनस बिन मालिक से, इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों के बारों में नमाज पढ़ते थे। अबुल्तिया या शोबा ने कहा, फिर मैंने अनस को ये कहते हुए सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों के बाड़ा में मस्जिद की तामीर से पहले नमाज पढ़ा करते थे। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब ऊँटों के रहने की जगह में नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 430। तर्जुमा हमसे सदका बिन फजल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुलेमान बिन हयान ने कहा हमसे उबैदुल्लाह ने नाफा के वासिता से, इन्होंने कहा कि मैंने इब्न उमर को अपने ऊँट की तरफ नमाज पढ़ते देखा और इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह पढ़ते देखा था। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब अगर कोई शख्स नमाज पढ़े और इसके आगे तनूर या आग या और कोई चीज़ हो जिसे मशरिक पहुँचते हैं, लेकिन इस नमाजी की नीयत महज इबादत अलही हो तो नमाज दुरुस्त है। हदीस नंबर 431। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, इन्होंने इमाम मालिक के वासिता से बयान किया, इन्होंने ज़ैद बिन असलम से, इन्होंने अता बिन यासार से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से, इन्होंने फरमाया कि सूरज गहन हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और फरमाया कि मुझे आज दोज़ख दिखाई गई, इससे ज़्यादा भयानक मंजर मैंने कभी नहीं देखा। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब मकबरों में नमाज पढ़ने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 432। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यही ने बयान किया, इन्होंने उबैदुल्लाह बिन उमर के वासिता से बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझे नाफा ने अब्दुल्लाह बिन उमर के वासिता से खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घरों में भी नमाजें पढ़ा करो और इन्हें बिल्कुल मकबरा ना बना लो। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब धंसी हुई जगहों में या जहाँ कोई और अजाब उतरा हो वहाँ नमाज पढ़ना कैसा है। हदीस नंबर 433। तर्जुमा हमसे इस्माइल बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन दीनार के वासिता से बयान किया, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन अजाब वालों के आसार से अगर तुम्हारा गुजर हो तो रोते हुए गुजरो, अगर तुम इस मौका पर रो ना सको तो उनसे गुजरो ही नहीं, ऐसा ना हो कि तुम पर भी उनका सा अजाब आ जाए। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब गिरजा में नमाज पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 434। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन सलाम बैकंदी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको अब्दा बिन सुलेमान ने खबर दी, इन्होंने हश्शाम बिन रू से, इन्होंने अपने बाप रू बिन जुबैर से, इन्होंने आयशा से कि सलमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक गिरजा का जिक्र किया जिसको इन्होंने हब्बिश के मुल्क में देखा, उसका नाम मारिया था। इसमें जो मूर्ति देखी थी वो बयान की। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऐसे लोग थे कि अगर उनमें कोई नेक बंदा या ये फरमाया कि नेक आदमी मर जाता तो इसके कब्र पर मस्जिद बनाते और इसमें ये बुत रखते। ये लोग अल्लाह के नज़दीक सारी मखलूक़ात से बदतर हैं। सही बुखारी किताब नमाज का बयान। हदीस नंबर 435। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको शोएब ने खबर दी ज़हरी से, इन्होंने कहा कि मुझे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा ने खबर दी कि आयशा और अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ अलूफ़ात में मुब्तला हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर को बार बार चेहरे पर डालते, जब कुछ शिफाका होता तो अपने मुबारक चेहरे से चादर हटा देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी इज़्तिराब व परेशानी की हालत में फरमाया, यहूद व निसारी पर अल्लाह की फटकार हो कि इन्होंने अपने अनबिया की कब्रों को मस्जिद बना लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाकर उम्मत को ऐसे कामों से डराते थे। सही बुखारी किताब नमाज का बयान। हदीस नंबर 436। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, इन्होंने मालिक के वास्ते से, इन्होंने इब्न शहाब से, इन्होंने सईद बिन मुसैयब से, इन्होंने अबू हरीरा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदियों पर अल्लाह की लानत हो, इन्होंने अपने अनबिया की कब्रों को मसाजिद बना लिया। सही बुखारी किताब नमाज का बयान। हदीस नंबर 437। तर्जुमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदियों पर अल्लाह की लानत हो, इन्होंने अपने अनबिया की कब्रों को मसाजिद बना लिया।
सही बुखारी, किताब नमाज का बयान, बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि मेरे लिए सारी ज़मीन पर नमाज पढ़ने और पाकी हासिल करने यानी तैमम करने की इजाज़त है। हदीस नंबर 438। तर्जुमा, हमसे मोहम्मद बिन सुनान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हशीम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबुल हकम सैयार ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यजीद फ़कीर ने कहा हमसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 5 ऐसी चीज़ें अता की गई हैं जो मुझसे पहले अनबिया को नहीं दी गई थीं। एक महीने की राह से मेरा रोब डालकर मेरी मदद की गई। 2, मेरे लिए तमाम ज़मीन में नमाज पढ़ने और पाकी हासिल करने की इजाज़त है, इसलिए मेरी उम्मत के जिस आदमी की नमाज का वक्त जहाँ भी आ जाए उसे वहीं नमाज पढ़ लेनी चाहिए। 3, मेरे लिए माल गनीमत हलाल किया गया। 4, पहले अनबिया ख़ास अपने कौमों की हिदायत के लिए भेजे जाते थे, लेकिन मुझे दुनिया के तमाम इंसानों की हिदायत के लिए भेजा गया है। 5, मुझे शफ़ाअत अता की गई है। सही बुखारी, किताब नमाज का बयान, बाब औरत का मस्जिद में सोना। हदीस नंबर 439। तर्जुमा, हमसे उबैद बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने हश्शम के वासिता से, इन्होंने अपने बाप से, इन्होंने आयशा से कि अरब के किसी कबीला की एक काली लौंडी थी, इन्होंने उसे आज़ाद कर दी था और वो इन्हीं के साथ रहती थी। इसने बयान किया कि एक दफ़ा उनकी एक लड़की जो दुल्हन थी नहाने को निकली, इसका कमरबंद सुर्ख तस्मू का था, उसने वो कमरबंद उतार कर रख दिया या इसके बदन से गिरगी। फिर इस तरफ से एक चील गुजरी जहाँ कमरबंद पड़ा था, चील इसे सुर्ख रंग की वजह से गोश्त समझकर झपट ले गई। बाद में कबीला वालों ने उसे बहुत तलाश किया लेकिन कहीं ना मिला। इन लोगों ने उसकी तहिम्मत मुझ पर लगा दी और मेरी तलाशी लेनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि इन्होंने उसकी शर्मगाह तक की तलाशी ली। इसने बयान किया कि अल्लाह की कसम मैं इनके साथ उसी हालत में खड़ी थी कि वही चील आई और उसने उनका वो कमरबंद गिरा दिया। वो उनके सामने ही गिरा। मैंने इसे देखकर कहा, यही तो था जिसकी तुम मुझ पर तहिम्मत लगाते थे। तुम लोगों ने मुझ पर इसका इल्ज़ाम लगाया था हालांकि मैं इससे पाक थी। यही तो है वो कमरबंद। इस लौंडी ने कहा कि इसके बाद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और इस्लाम लाई। आयशा ने बयान किया कि इसके लिए मस्जिद नबवी में एक बड़ा खैमा लगा दिया गया, या ये कहा कि छोटा सा खैमा लगा दिया गया। आयशा ने बयान किया कि वो लौंडी मेरे पास आती और मुझसे बातें किया करती थी। जब भी वो मेरे पास आती तो ये ज़रूर कहती कि कमरबंद का दिन हमारे रब की अजीब निशानी में से है, उसी ने मुझे कफर के मुल्क से निजात दी। आयशा फरमाती हैं कि मैंने इससे कहा, आखिर बात किया है, जब भी तुम मेरे पास बैठती हो तो ये बात ज़रूर कहती हो। आपने बयान किया कि फिर इसने मुझे यह किस्सा सुनाया। सही बुखारी, किताब नमाज का बयान, बाब मस्जिदों में मर्दों का सोना। हदीस नंबर 440। तर्जुमा, हमसे मुसद्दद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे यही ने उबैदुल्लाह के वासिता से बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझको नाफा ने बयान किया, कहा कि मुझे अब्दुल्लाह बिन उम ने खबर दी कि वो अपनी नौजवानी में जबकि उनके बीवी बच्चे नहीं थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में सोया करते थे। सही बुखारी, किताब नमाज का बयान, बाब मस्जिदों में मर्दों का सोना। हदीस नंबर 441। तर्जुमा, हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाज़िम ने बयान किया, इन्होंने अपने बाप अबू हाज़म सहल बिन दीनार से, इन्होंने सहल बिन साद से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा के घर तशरीफ़ लाए देखा कि अली घर में मौजूद नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारे चचा के बेटे कहाँ हैं? इन्होंने बताया कि मेरे और इनके दरमियान कुछ नागवारी पेश आ गई और वो मुझ पर खफा होकर कहीं बाहर चले गए हैं और मेरे यहाँ कैलूला भी नहीं किया है। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से कहा कि अली को तलाश करो कि कहाँ हैं। वो आए और बताया कि मस्जिद में सोए हुए हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। अली लेटे हुए थे, चादर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू से गिर गई थी और जिस्म पर मिट्टी लग गई थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म से धूल झाड़ रहे थे और फरमा रहे थे, उठो अबू तरब उठो। सही बुखारी, किताब नमाज का बयान, बाब मस्जिदों में मर्दों का सोना। हदीस नंबर 442। तर्जुमा, हमसे यूसुफ बिन ईसा ने बयान किया, कहा हमसे इब्न फजील ने अपने वालिद के वासिता से, इन्होंने अबू हाज़म से, इन्होंने अबू हरीरा से कि आपने फरमाया कि मैंने 70 असहाब सफ़ा को देखा कि उनमें कोई ऐसा ना था जिसके पास चादर हो, फ़कत तह बंद होता या रात को ओढ़ने का कपड़ा जिन्हें ये लोग अपनी गर्दनों से बांध लेते।
یہ کپڑے کسی کے آدھی پنڈلی تک آتے اور کسی کے ٹخنوں تک۔ یہ حضرات ان کپڑوں کو اس خیال سے کہ کہیں شرمگاہ نہ کھل جائے اپنے ہاتھوں سے سمیٹے رہتے تھے۔ صحیح بخاری، کتاب نماز کا بیان، باب سفر سے واپسی پر نماز پڑھنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 443۔ ترجمہ: ہم سے خالد بن یحیی نے بیان کیا، کہا ہم سے مصر نے، کہا ہم سے محارب بن دثار نے جابر بن عبداللہ کے واسطہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مصر نے کہا میرا خیال ہے کہ محارب نے چاشت کا وقت بتایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ، اور میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اور زیادہ ہی دیا۔ صحیح بخاری، کتاب نماز کا بیان، باب جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ حدیث نمبر 444۔ ترجمہ: ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے عامر بن عبداللہ بن زبیر سے یہ خبر پہنچائی، انہوں نے عمرو بن سلیم زرقی کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے ابو قتادہ سلمی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری، کتاب نماز کا بیان، باب مسجد میں ریا ہوا خارج کرنا۔ حدیث نمبر 445۔ ترجمہ: ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ کہا ہمیں مالک نے ابو الزناد سے، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے ابو ہریرہ اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے مسئلے پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ریا خارج نہ کرو تو ملائکہ تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ مغفر لا، اللہ رحمہ اے اللہ اس کی مغفرت کیجئے، اے اللہ اس پر رحم کیجئے۔ صحیح بخاری، کتاب نماز کا بیان، باب مسجد کی عمارت۔ حدیث نمبر 446۔ ترجمہ: ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد ابراہیم بن سعید نے صالح بن کیسان کے واسطے سے، ہم سے نافع نے عبداللہ بن عمر کے واسطہ سے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد نبوی کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی، اس کی چھت کھجور کی شاخوں کی تھی اور ستون اسی کی کڑیوں کے۔ ابوبکر نے اس میں کسی قسم کی زیادتی نہیں کی، البتہ انہوں نے اسے بڑھایا اور اس کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی بنیادوں کے مطابق کچی اینٹوں اور کھجوروں کی شاخوں سے کی اور اس کے ستون بھی کڑیوں ہی کے رکھے۔ پھر عثمان نے اس کی عمارت کو بدل دیا اور اس میں بہت سی زیادتی کی، اس کی دیواریں منقش پتھروں اور گچ سے بنائیں، اس کے ستون بھی منقش پتھروں سے بنوائے اور چھت ساگوان سے بنائی۔ صحیح بخاری، کتاب نماز کا بیان، باب مسجد بنانے میں مدد کرنا یعنی اپنی جان و مال سے حصہ لینا کار ثواب ہے۔ حدیث نمبر 447۔ ترجمہ: ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن مختار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خالد حضان اکرمہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے اور اپنے صاحبزادے علی سے ابن عباس نے کہا کہ ابو سعید خدری کی خدمت میں جاؤ اور ان کی احادیث سنو۔ ہم گئے، دیکھا کہ ابو سعید اپنے باغ کو درست کر رہے تھے، ہم کو دیکھ کر آپ نے اپنی چادر سنبھالی اور گوٹ مار کر بیٹھ گئے، پھر ہم سے حدیث بیان کرنے لگے۔ جب مسجد نبوی کے بنانے کا ذکر آیا تو آپ نے بتایا کہ ہم تو مسجد کے بنانے میں حصہ لیتے وقت ایک ایک اینٹ اٹھاتے، لیکن عمار 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا افسوس، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی جسے عمار جنت کی دعوت دی گئی اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی دعوت دے رہی ہوگی۔ ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ عمار کہتے تھے کہ میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری، کتاب نماز کا بیان، باب بڑھئی اور کاریگر سے مسجد کی تعمیر میں اور ممبر کے تختوں کو بنوانے میں مدد حاصل کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 448۔ ترجمہ: ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہ کہا ہم سے عبدالعزیز نے ابو حازم کے واسطہ سے، انہوں نے سہل سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ اپنے بڑھئی غلام سے کہے کہ میرے لیے ممبر لکڑیوں کے تختوں سے بنا دے جن پر میں بیٹھا کروں۔ صحیح بخاری، کتاب نماز کا بیان، باب بڑھئی اور کاریگر سے مسجد کی تعمیر میں اور ممبر کے تختوں کو بنوانے میں مدد حاصل کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 449۔ ترجمہ:
ہم سے خالد بن یحیی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ واحد بن ایمن نے اپنے والد کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے جابر بن عبداللہ سے کہ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بنا دوں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کریں؟ میرا ایک بڑھئی غلام بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو ممبر بنوا دے۔ صحیح بخاری، کتاب نماز کا بیان، باب جس نے مسجد بنائی اس کے اجر و ثواب کا بیان۔ حدیث نمبر 450۔ ترجمہ، ہم سے یحیی بن سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عمرو بن حارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے بکیر بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے عاصم بن عمرو بن قتادہ نے بیان کیا، انہوں نے عبیداللہ بن اسود خولانی سے سنا، انہوں نے عثمان بن عفان سے سنا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے متعلق لوگوں کی باتوں کو سن کر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں، حالانکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے مسجد بنائی بکیر راوی نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی ایک مکان جنت میں اس کے لیے بنائے گا۔